Hello and welcome to a brand new episode of Saptarishi's Astrology. Today, we'll be discussing something very fundamental, but at the same time, not many astrologers use it. We'll be discussing about numerology. Hey, don't go away, because what we discuss can change your life. Numerology was brought to the forefront by Dr. Matrix in 1960, and still today he is known as the father of numbers and or numerology. In his books, as I was reading it yesterday, because it is my way of doing interview that whenever I'm doing an interview for any interviewer, I read the topic, I learn that thing so that I know the questions that I need to ask. If you ever get time to read that book on numbers by Dr. Matrix, beautiful examples on numerology and how it works given. One that caught my attention was the numerological significance attached to two great presidents of United States of America, Mr. Lincoln and Mr. Kennedy. One assumed office in 1839. The other assumed office, I think 1839. Let me just have a check. No, it's 1860. Sorry. Lincoln assumed office in 1860 and Kennedy 1960. Both were assassinated on a Friday. Both had their wives with them. Both lost their first child when they were in the White House. Both fought for the rights of Negroes. See the letters, see the dates, see the person who killed them. All have great numerical significance. If I discuss this itself will become a video. So, without wasting time, I hope this brand new episode, you will really love it, you'll appreciate it, and you'll put down your questions in the comment section, and you will subscribe to our channel. What can numbers do for us? What is our destiny number, life path number, activator number? And to discuss this with us, we have Mr. Rahul Kaushik from Delhi, a very young man with a deep knowledge of numerology. Let's welcome Shri Rahul Kaushik ji. Rahul ji, namaskar. नमस्कार वरुण जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया. How are you doing, sir? I am fine. I am absolutely fine. Great to see you, sir. Same here. Sir, so what are you going to tell us today? वरुण जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी पर जो बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही एक्यूरेट है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस इसको अपना ड्यू क्रेडिट आज तक नहीं मिल पाया है. बिकॉज जो प्रचलन में जितनी भी न्यूमरोलॉजीज अभी तक हैं, जिनको यूजुअली हम यूज करते हैं, जैसे चैल्डियन है, पाइथागोरस है, तो कबाला न्यूमरोलॉजी को बहुत कम, तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी और कबाला न्यूमरोलॉजी जो है, इसको बहुत रेयरली लोगों ने यूज किया है. बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसकी सटीकता जो है, जो इसकी एक्यूरेसी है, वो बाकी फॉर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी से काफी ज्यादा है. अभी अपने सेशन के दौरान हम कुछ केस स्टडीज हैं जिन पर देखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, तो यू विल सी कि कितना अमेजिंगली ये साइंस वर्क करती है और कितनी ज्यादा एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ नंबर या नाम, इन सब चीजों में इस साइंस की है. और इसके बाद हम थोड़ा सा वास्तु रेमेडीज पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज की डेट में कई वास्तु रेमेडीज हैं जो प्रचलन में हैं, लेकिन जाने अनजाने कई लोग ऐसे हैं जो वास्तु रेमेडीज को लगा लेते हैं और उसके बाद कई जो दुष्प्रभाव हैं वो उसके उनको झेलने पड़ते हैं. रीजन भी कि वो जो वास्तु रेमेडीज के साथ में जो एक एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन जो बना हुआ है, वो उसको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं.
और कोई भी चीज अगर आप यूज कर रहे हैं, अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे वो रेमेडी के रूप में है, कलर के रूप में है, तो कहीं ना कहीं किसी ग्रह को आप अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी आप इस तरीके का कार्य करें, कुछ भी ऐसी कोई एनर्जी इंट्रोड्यूस करें, तो वो तभी करें जब आप एक प्रॉपर एनालिसिस किसी भी बर्थ चार्ट का कर लें। अदरवाइज ये आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर, हाउ हैज बीन योर एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी? आपका गुरु कौन है, सीखे आप कहां से सर? इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं तो प्लीज। वरुण जी, एक्चुअली 7th क्लास से ही, जब बहुत छोटे थे, तो हमारे यहाँ आसपास में एक एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे जो हाथ देखने में बड़े एक्सपर्ट थे। तो मैं जाके उनके पास बैठ जाया करता था, और बैठ के मेरे को 2-3 चीजें आ गई। तो मैं जैसे एक दिन अपना स्कूल में थे, तो अपनी मैडम थी, हमारी हिंदी की टीचर थी, उनका हाथ देखा, तो मैंने कुछ बातें उनको बोली कि मैडम ऐसे ऐसे आपको तो बड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स अभी चल रही होंगी, और आपका एक्सीडेंट अभी कुछ टाइम पहले हुआ था। वो कहते तेरे को कैसे पता है ये बात? 7th क्लास का बच्चा ये बात कैसे बोल सकता है? तो मैं वहां पर एक बाबा के नाम पर फेमस हो गया। 7th क्लास का बच्चा बाबा के नाम पर फेमस हो जाता है अपने स्कूल में, ये बहुत अच्छा हाथ देखता है, जबकि हाथ का मेरे को एबीसी भी नहीं पता था। सिर्फ 2 या 3 चीजें उनकी मैं देखी और उनको ही मैं अप्लाई करता रहता था। तो कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई कि यार ये सब चीजें आदमी के बारे में कितना कुछ इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो छोटी छोटी बुक्स लाके पढ़ना शुरू कर दिया, सारी चीजें हुई। लेकिन जो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया, ये छोटी मोटी पढ़ाइयां तो हमेशा ऑन ही रहती रही। कभी कोई बुक लाके पढ़ ली, कभी सन साइंस को पढ़े, कभी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की कोई बुक पढ़ ली। लेकिन 2011 की बात है, जब मेरा कोर्टशिप पीरियड चल रहा था, मेरी शादी से जस्ट पहले, तो मेरी वाइफ के दिमाग में किसी एस्ट्रोलॉजर ने एक बात डाल दी कि आप जिससे शादी करने जा रहे हो उसके तो नाम में ही राहु है, बिकॉज मेरा नाम राहुल है। तो शी वॉज वेरी वरीड, और वो काफी टेंस थी कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई आगे जाके हमें कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स लाइफ में आए। तो मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गए, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, कोई फायदा नहीं है। तो दिल्ली में लेकर गए, और वहां पर हमने बैठकर उन एस्ट्रोलॉजर को 3 कुंडलियां दिखाई, और 3 कुंडलियां दिखाने के उन्होंने हमसे कुछ 9300 रुपीज चार्ज कर लिए, 3100 रुपए पर कुंडली। और बहुत कॉमन चीजें बताई, आप अच्छे हो, आप गलत को गलत कहते हो, सही को सही कहते हो। तो मतलब जो बहुत कॉमन चीजें हैं जो आप और मैं कभी भी किसी के सामने बोल सकते। मैंने अपनी वाइफ को बोला, यार मैं एक इंजीनियर होके पूरा दिन मेहनत करता हूं और उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं आता, और यहाँ पर ये बंदा 15-20 मिनट में इतना पैसा बना गया, तो इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन ही नहीं। तो पहला आइडिया जो मेरे माइंड में आया वो ये आया कि यार ये प्रोफेशन बहुत बढ़िया है। तो बिकॉज क्या है कि आज की डेट में कहीं ना कहीं जो चीज भी मॉनेटरी गेन किसी को दे सकती है, आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता ही होता है। तो सडनली मैंने अपनी बुक्स वगैरह मंगानी चालू करी और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऑल ऑफ ए सडन मुझको पता चलता है कि 2013 में ये भारतीय विद्या भवन में एक इंटरनेशनल कोर्स होने जा रहा है, जो स्पेशली रशियन स्टूडेंट्स के लिए वहां पर अरेंज किया जाता है, और मोस्टली अक्टूबर-नवंबर में ही होता है, जब राव साहब का बर्थडे आसपास रहता है। तो लकीली मैं वहां एंटर कर गया। वहां पर जाकर जब राव साहब से मुलाकात हुई, तो वो जो कर्मा थ्योरी है वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में आके घर कर गई कि कुछ भी अगर करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, तो भाई कर्मा से पीछा नहीं छूटने वाला। तो उनकी बुक जो है योगी डेस्टिनी एंड व्हील ऑफ टाइम, वो भी सारी कर्मा पे ही। तो उसने भी बहुत ब्रेन वॉश करने का काम किया पूरा। तो वहां पर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के मैं कांटेक्ट में आया, और मेरे को बहुत एक्यूरेट साइंस लगी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, और ये लगा कि वास्तव में जो विद्याएं कुछ जो हम लोगों को मिली हैं पीछे से, जैसे कृष्णा मूर्ति जी ने जो केपी पद्धति को निकाल के दिया है, ठीक उसी तरीके से राव साहब ने भी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पर बहुत ही उम्दा काम किया है, बहुत उम्दा काम किया है, और सटीकता भी उसकी बहुत अच्छी है। तो उसी तरीके से जब मेरी ये लर्निंग चल रही थी, तो लोग बीच बीच में आते थे, किसी की प्रेडिक्शन सच हो जाती थी, किसी की नहीं होती थी। तो एक दिन मेरे फादर का एग्जाम था, कोई प्रमोशन का एग्जाम था, तो मैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को उस टाइम पे रीड कर रहा था, और मैं इंटरलिंकिंग डेस्टिनी पर काम कर रहा था।
कि अपने चार्ट से जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप दशास के अकॉर्डिंग कैसे अपने जो आपके चिर परिचित लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं आपके ब्लड रिलेशन में, उनके लिए क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो मेरी मदर बोलती हैं कि 7 दिन एग्जाम को रह गए हैं और कोई फायदा नहीं है एग्जाम देने का। तो मेरा ऑल ऑफ अ सडन मेरे मुंह से निकलता है, आप इनको एग्जाम में बिठाओ, इनका प्रमोशन तय है। तो मम्मी बोलती कि यह क्या बोल रहा है कि जिस आदमी ने कुछ काम नहीं किया, इतने सारे लोग वहां पर रेस में। तो मैंने डैड से बात की, उन्होंने भी वही बात बोली कि यार कोई चांस नहीं है। मैंने कहा आप प्लीज एक बार मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं फिर एस्ट्रोलॉजी नहीं करूंगा। वो एक बार थोड़ा सा डायलॉग बोलना पड़ता है। तो एग्जाम हुआ, ये आए, काफी मतलब नर्वस थे उस टाइम पे। तो मेरी जो वाइफ है उन्होंने पूछा कि पापा एग्जाम कैसा रहा, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होने वाला। बट आई वॉज प्रिटी श्योर कि इनका जो प्रमोशन है वो हो गया है। तो हम किसी मैरिज पार्टी में थे, मेरी मदर ने ऑल ऑफ ए सडन मेरे को बुलाया बहुत दूर से, राहुल। मैंने वहीं से बोला उनको प्रमोशन हो गया। शी सेड यस, प्रमोशन हो गया। और रीजन क्या था कि चर दशा के अंदर 10th हाउस में सूर्य प्लेस था जो पिता का कारक है, अलोंग विद द दारा कारक जो पद प्राप्ति का कारक है। तो इट वॉज प्रिटी श्योर के प्रमोशन होना है। तो वहां से एक छाप ये लग गई कि यार इस आदमी को कुछ ना कुछ पता है। तो वहां से जब क्या होता है, आपकी प्रिडिक्शंस जब स्टार्ट होने लगती है, मतलब प्रूव होने लगती है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और कहीं ना कहीं फिर आप अग्रसर होते हो और कुछ चीजें फाइंड आउट करने के। तो वहां से मेरी नॉलेज बहुत ब्रश अप होनी स्टार्ट हो गई। तो अगर गुरु की बात करें तो सिर्फ राव साहब को छोड़कर किसी से भी कोई डायरेक्टली ऐसा खास कांटेक्ट नहीं हुआ, और राव साहब से भी जो कांटेक्ट हुआ वो भी मात्र उन 10 दिनों के लिए था। और अगर मैं अपनी एक प्रस्तुति करूं तो मैं ये मानता हूं कि राव साहब के लिए मैं एक एकलव्य की तरह हूं, जो शायद मेरे को जानते भी नहीं है कि मैं कौन हूं, क्या हूं। हालांकि 1-2 बार इंटरेक्शन हुआ है, बट सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो मेरे को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल मैं उनको सब कुछ मानता हूं कि आज जो कुछ भी मेरे पास है, जितना कुछ भी है, चाहे लिमिटेड सोर्स है, जितना भी है, वो सब बिकॉज ऑफ हिम एंड माय एंसेस्टर्स। तो ये तो मैंने फिर जब ये मेरी नॉलेज चलता रहा, सब कुछ मेरा ऑन रहा प्रोसेस, तो 2015 में मैं कंप्लीटली अपना जॉब से रिजाइन कर बिकॉज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था मैं, 9 साल मैंने काम किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। तो मैंने कंप्लीटली क्विट करके इस फील्ड के अंदर मैं एंटर कर गया प्रोफेशनली। तो हाउ डिड यू, ये मेरा एक शॉर्ट मेरी जर्नी थी। राइट सर, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस कबाला न्यूमरोलॉजी? एक्चुअली वरुण जी, मेरे को ऋषिकेश से बड़ा लगाव है, और ऋषिकेश जो प्लेस है उसके अंदर फॉरेनर्स का आना जाना बहुत रहा है। और फॉरेनर्स लोग क्या है, फॉरेनर्स में भी आप देखेंगे कि ऋषिकेश में इजराइल के लोग बहुत आते हैं। यू विल फाइंड मेनी इजरायली पीपल ओवर देयर। तो उनका कुछ ट्रेनिंग वगैरह रहता है, और उसके बाद वो इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं कि उसके बाद उनको ऋषिकेश से बढ़िया कोई जगह नहीं दिखती। तो माई फ्रेंड इज देयर, उनका नाम रॉय है। तो उनसे मेरी वहां पर मुलाकात हुई, जस्ट ऐसी कॉफी शॉप वगैरह में बैठे थे। तो कुछ एस्ट्रोलॉजी को लेकर बात हो रही थी। वो जानना चाह रहे थे कि ये एस्ट्रोलॉजी है, ये कितना सटीक है, कितना एक्यूरेट है, कितना काम करती है। तो मैंने कुछ न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन उनको दी, बिकॉज मेरे पास कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाने के लिए नहीं था। एंड सडनली आई came across some very interesting fact. He was having some picture in his hand, जो श्री यंत्रा का 3D फॉर्मेशन था। एंड सडनली मेरा दिमाग गया कि जो इजराइल का अगर आप फ्लैग देखेंगे तो उसका भी जो सिंबल है वो वही है जो 3D फॉर्मेशन है श्री यंत्रा की। आप ट्रायंगुलर फॉर्मेशन देखेंगे अगर श्री यंत्रा की, तो ये बहुत हद तक सिमिलर है जो इजराइल का फ्लैग है उसके। तो मेरे को ऑल ऑफ ए सडन एक आया कि कहीं ना कहीं इनका जो मिस्टिक ट्रेडिशन है, जिसको अभी कबाला बोलते हैं हम,
और जो हमारा ट्रेडिशन है जिसके अंदर हमारा योग भी है, हमारा तंत्र भी है, ज्योतिष है, जितने भी हमारे हैं, ये काफी हद तक मेल खाते हैं, काफी चीजें हैं इनमें। और कबाला जो है बेसिकली ये इनका एक स्कूल ऑफ थॉट है। जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वैष्णव है, शैविज्म है, ठीक उसी तरीके से इनके कबाला है। ओके। और कबाला की जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वरुण जी, वो इनका ट्री ऑफ लाइफ है। एक सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल जिसको पूरा जो जेविश पीपल हैं, जो हिब्रू लोग हैं, जो हिब्रू भाषा का प्रयोग करते हैं, ये ट्री ऑफ लाइफ को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। और उस ट्री ऑफ लाइफ में 22 ब्रांचेस हैं जो आपके लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से जुड़ी हुई हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी कुंडली में 12 भाव हमारी लाइफ के डिफरेंट डोमेन से जुड़े हुए हैं। और उन्हीं 22 ब्रांचेस के आधार पर इनके 22 अक्षरों की रचना हुई। जो जेविश पीपल हैं, इनकी जो लैंग्वेज है हिब्रू, उसमें 22 अल्फाबेट्स हैं। जैसे हमारे 26 हैं इंग्लिश में, ऐसे ही इनके 22 हैं। तो वो जो 22 लेटर्स हैं, उनका जो ज्यादा एम्फेसिस है वो उच्चारण पर है। इंग्लिश में जिस तरीके से कई त्रुटियां हैं कि आप बीयूटी को बुट नहीं कहते, बट कहते हैं, और पीयूटी को पुट कहते हैं, तो वो सारी त्रुटियां आपको हिब्रू लैंग्वेज में नहीं मिलेंगी। बिकॉज हिब्रू, हिंदी एंड चाइनीज ये वो लैंग्वेज हैं जो ध्वनि पर और उच्चारण पर बहुत काम करती हैं। इनको जैसा लिखा जाता है ये वैसी ही बोली जाती है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज जरूर क्लिक होनी चाहिए कि जिस चैल्डियन थ्योरी पर आज तक काम हुआ है, उस पर उच्चारण को ध्यान में नहीं रखा गया, प्रोनाउंसिएशन को वहां पर तवज्जो नहीं दी गई। और वहां पर ये एक थ्योरी स्टार्ट हो गई कि अगर नाम में आपने कोई ए ऐड कर दिया या नाम में आपने कोई आई ऐड कर दिया, तो उससे आपका नाम में एक चेंज हो गया और आपकी डेस्टिनी में चेंज हो गया, जिसको मैं पूरी तरीके से निराधार मानता हूं। क्योंकि अगर कोई ध्वनि में, अगर किसी उच्चारण में परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब वाइब्रेशंस में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, वाइब्रेशन वैसी की वैसी है। तो इसने मेरी क्वेस्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया ये जानने के लिए। हाँ, फिर तो जब मेरी क्वेस्ट बढ़ गई तो मैंने ये देखा कि ये 22 के 22 जो लेटर्स हैं, इनसे कुछ ध्वनियां निकल के आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिब्रू के पहले लेटर को देखें तो वो अलफ है, अलफ, तो उससे एक साउंड निकल के आती है ए, और उसको एक नंबर असाइंड है, जो नंबर इन्होंने ही असाइन किया हुआ है खुद, जो 1 नंबर है। और अगर इस अ वर्ड की साउंड को हिंदी से जोड़ के देखा जाए, तो जब अ साउंड ने 1 नंबर उसको अलॉट किया, तो ठीक इसी तरीके से जो हमारा शब्द है अ, जिसको हम यूज करते हैं कहीं भी, जैसे हम अंबर लिख रहे हैं, अमित लिख रहे हैं, तो उसमें जो पहली साउंड अ आ रही है, तो उसको 1 नंबर असाइन हुआ। ठीक उसी तरीके से जितने भी हिब्रू लेटर्स हैं 22 के 22, इन्होंने जो साउंड प्रोड्यूस करी, उस साउंड को हमने हिंदी के साथ जोड़कर देखा और उन हिंदी लेटर्स को कुछ नंबर्स अलॉट किए। जो शीट मैंने आपके साथ शेयर की थी कुछ, तो उसमें आप पाएंगे कि उन सभी हिंदी जो लेटर्स हैं उनके साथ में कोई ना कोई नंबर असाइन है। क्या मैं शीट को शेयर करूं? जी, हिब्रू कबला लेटर्स, राइट? जी, यही वाला शीट का बात कर रहे हैं सर आप? जी, 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 मैं यही बात कर रहा हूं। ओके, हाँ सर। अब वरुण जी, आप देख रहे होंगे शीट में कि सबसे पहला जो लेटर है वो अलफ है, राइट। तो साउंड आ रही है अ।
राइट। इसी तरीके से जो दूसरा लेटर है वो है बेत, साउंड आ रही है बी। हाँ अगर इसको जोड़ के देखें तो बी साउंड ब शब्द की होती है। ब जो आपके नाम में वरुण है वो ब है। हाँ तो ब को भी नंबर मिलेगा 2। हाँ और जो पांचवा लेटर है वो है हे। हाँ हे तो उसमें भी साउंड जो आ रही है निकल के वो ह की आ रही है और ए की भी आ रही है, ई। हाँ हाँ तो उसको बराबर। नंबर असाइन किया 5। तो ये हे जो साउंड आ रही है इसको हम हिंदी में जोड़ के देखेंगे ह शब्द से, ह। हाँ तो ह को नंबर दिया 5। तो ठीक इसी तरीके से ये जो 22 लेटर्स हैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को हिंदी की साउंड्स के साथ जोड़ा है। और आप देखिए जो नेक्स्ट शीट है वो आपको हिंदी की मिलेगी। आप आगे चलेंगे तो यहां पे आप देख रहे हैं जैसे अ हो गया अ, तो अ में एक साउंड आई हाँ जिसको नंबर मिला 1। हाँ अब उसी अ को जोड़ दिया गया, आ कर दिया अ। हम्म, तो वहां पर इसको साउंड को एक और नंबर मिल गया। तो वो आ जो साउंड हो गई वो 2 हो गई। जैसे जैसे अगर किसी लेटर, अब कोई हम नाम यूज कर रहे हैं अमित, तो अमित में जो पहली साउंड निकल के आ रही है वो आ की आ रही है, अ। लेकिन दूसरा नाम हम लिख रहे हैं आरंभ, तो आरंभ के अंदर जो पहली साउंड आएगी वो आ की आएगी, ना कि अ की आएगी। तो उस आरंभ की साउंड में जो आ शब्द का हम वो लेंगे टोटल, वो 2 लेंगे। तो ठीक इसी तरीके से ई है, फिर बड़ी ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ए है। तो ठीक इसी तरीके से हमने हिंदी के सारे शब्दों को ध्वनि के अनुसार जोड़कर कुछ नंबर्स अलॉट किए। ये आप नंबर देख रहे होगे, राइट सर। का खा गा क ख ग घ। बराबर। ठीक है, जैसे आपके नाम में हम देखते हैं वरुण देव है, देव। तो आप यहां पर देखेंगे द शब्द जो है, हाँ हाँ सर बोलिए। ठीक है, द शब्द जो है वो आपको दिख रहा होगा। त के बाद यहां पर द शब्द दिख रहा होगा। द को जो मिला है नंबर वो मिला है 4। राइट। ठीक है, तो बेसिकली हम जब भी किसी नाम को एड ऑन करेंगे, जब भी किसी नाम को हम एड ऑन करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं वरुण देव चौधरी, तो ब सबसे पहला शब्द आएगा ब, फिर आएगा र, बराबर। फिर उस पे जो उच्चारण हुआ है किसका, ऊ का, बर ऊ, और फिर ना। तो ठीक इस तरीके से शब्दों को तोड़ा जाएगा नाम में कि एक नंबर मिलेगा ब को, एक मिलेगा र को, ब र, फिर मिलेगा ऊ को क्योंकि छोटा ऊ आएगा वरुण में, हाँ और फिर मिलेगा न को, हाँ न जो है 5। तो ठीक हाँ इसी तरीके से आपकी जो ध्वनि निकल के आएगी वरुण की, वो इन नंबर्स के आधार पर निकल के आएगी। बरोबर। तो यहाँ पे और न का क्या जो न है, दो हाँ जी, टाइप का न है हिंदी में, अगर मैं गलत ना बोलूं तो। हाँ, तो दोनों न का क्या अलग नंबर है या सेम नंबर है? नहीं सेम ही आएगा क्योंकि साउंड तो ना ही आई अच्छा ना, वो ध्वनि वही रही, ना की ध्वनि में चेंज नहीं हुआ। ठीक है। वो लिखा कैसे भी, लेकिन ना की ध्वनि नहीं बदली। बरोबर। जैसे वरुण या कारण, तो लास्ट में जो ध्वनि निकल के आई वो ना की ध्वनि आई। लेकिन अगर आप डै की बात करेंगे, जैसे डै डमरू या ढै ढक्कन, तो उस केस में दोनों में ध्वनि बदल जाती है। ड की ध्वनि अलग है, ध की ध्वनि अलग है, लेकिन ना में ध्वनि नहीं बदल रही है, ढा में प्रोनाउंसिएशन कुछ भी बदल नहीं रहा है, इसलिए वहां पर नंबर 5 ही लिया जाएगा। तो ठीक इसी आधार पर ये सारे नंबर्स यहां पर मेंशन। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। तो सर एक बात बताइए, ये कबाला न्यूमरोलॉजी से कोई भी अगर हम नाम लेते हैं, से फॉर जी। एग्जांपल
सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी, या चलिए सर जी आपका ही नाम ले ले, राहुल कौशिक। जी तो कैसे हमको पता चलेगा सर डेस्टिनी नंबर क्या है? क्योंकि आपने पहले बताया है कि दिस सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द जी। पाइथागोरस सिस्टम और द अदर सिस्टम्स दैट वी फॉलो इन न्यूमरोलॉजी राइट नाउ। वरुण जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आज की डेट में अगर कोई भी व्यक्ति है जो सक्सेसफुल है, हम्म, उसके सक्सेसफुल होने के पीछे सबसे बड़ा आधार यह है कि कहीं ना कहीं वो अपनी वाइब्रेशन से कनेक्टेड है। वो डिस्कनेक्टेड आदमी तो नहीं हो सकता। जो भी आदमी सक्सेस के पाथ पे आज की डेट में है वो डिस्कनेक्टेड तो नहीं है, समवेयर इज कनेक्टेड। तो वो राइट। जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को जब आप इस आधार पर ढूंढने चलेंगे तो वो आपके समक्ष बिल्कुल प्रत्यक्ष होकर खड़ा हो जाए। आगे जितने भी हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं उसमें ये थ्योरी पूरी तरीके से अपने आप को प्रत्यक्ष करके बता देगी कि ऐसा क्यों है कि ये थ्योरी अलग है। क्योंकि जब तक किसी थ्योरी की एप्लीकेशन को ना समझा जाए, उस थ्योरी के बारे में कुछ भी कहना गलत है कि वो सही है या गलत। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो जी could you give us some example how this Kabbalah theory works? कैसे ये काम करता है सर ये Kabbalah theory, या ये जी Kabbalah बिल्कुल के ऊपर कुछ एग्जांपल आप दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देना चाहूंगा आपको। बिल्कुल मैं देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आपको मैंने जो चार्ट्स कुछ केस स्टडीज आपके साथ शेयर की हैं वो आप स्क्रीन पर शेयर करें। राइट सर, आई विल बी शेयरिंग। जी दिस इज अ केस स्टडी ऑन नरेंद्र मोदी, द मोस्ट पावरफुल जी मैन ऑफ इंडिया। जी, right now, and I think after 2019 also he'll be in the seat again। तो आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18 सितंबर 1950, 17। सॉरी 17 सितंबर 1950। तो 17 सितंबर 1950 के आधार पर इनको दो नंबर मिले जो एक बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर होता है। वो है इनके 8 और 5। 5, हाँ ठीक है, 8 एंड 5 नंबर उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ ने दिए। अब ये जो स्क्रीन में आप तीसरा नंबर देख रहे हैं, एक्टिवेटर नंबर, ये कबाला न्यूमरोलॉजी का सबसे मैजिकल नंबर है। वी कॉल इट द मोस्ट मैजिकल नंबर इन न्यूमरोलॉजी, एंड इन हिंदी वी कॉल इट योग कारक अंक। और इस योग कारक अंक की ये पावर है कि ये बैड सर्कमस्टांसेस में भी किसी व्यक्ति को पूर्णता उठाने की कैपेसिटी रखता है। और जितनी भी न्यूमरोलॉजी अभी तक फॉलो हुई हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा एम्फेसिस बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को दिया है। लेकिन कबाला न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा पावर हम दो नंबर्स की मानते हैं। पहला एक्टिवेटर नंबर, एंड सेकंड वन इज द नंबर बीइंग गेटिंग जनरेटेड बाय योर नेम। आपका नाम किस नंबर को जनरेट कर रहा है। बिकॉज अगर नरेंद्र मोदी कभी भी किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को, तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं 17 सितंबर 1950 बोल रहा हूं। वो बोलेंगे मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। तो जिस वाइब्रेशन को वो आगे कैरी कर रहे हैं, वो 17 सितंबर 1950 को कैरी नहीं कर रहे हैं, वो उस वाइब्रेशन को कैरी कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के नाम से जनरेट हो रही है। तो इस केस स्टडी के अंदर आपने देखा कि ये जो दो नंबर हैं, इनके अलावा ये जो तीसरा नंबर है एक्टिवेटर नंबर, जिसको हम योग कारक अंक कहते हैं, ये वो मैजिकल प्लेनेट है कि जब भी ये किसी भी रूप में आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होगा तो ये आपके जीवन में पूर्णता बदलाव कर देगा। अब इसको आप कोइंसिडेंस कहेंगे या एक
रेगुलर डेस्टिनी पैटर्न कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो जो उनकी डेट का टोटल था वो 2 था, और दूसरी दफा जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उस टाइम भी जो डेट का टोटल आया 26 मई 2014 को वो 2 था। सर यहाँ तो पे आप पूछना था आपसे मुझे, सॉरी टू इंटरप्ट सर, जी ये चीज क्या है? अगर मैं आपको दिखाऊं, जी, ये जो यहाँ पे जो 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो 7 लिखा हुआ है, ये क्या है? 7/2 जो है ये क्या है? ये 7/2 मीन्स जो birth 2 number is नंबर 7 and the destiny number becomes 2, personal year number. नो एक्चुअली वरुण जी, आप किसी भी डेट का जब एनालिसिस करते हैं, किसी भी डेट का, चाहे वो आपकी बर्थ डेट है या कोई भी डेट, तो वो डेट हमें 2 नंबर जनरेट करके देती है। पहला नंबर तो जो उस पर्टिकुलर डेट का है, जो पहली से लेकर 31 तक है, और एक नंबर जो वो उस पूरी टोटल डेट का देती है। तो ये वो 2 नंबर है, 7/2, यानी कि 7 वो तारीख थी और जो पूरा टोटल निकल के आया वो 2 था। फैंटास्टिक। तो ठीक उसी तरीके से जब वो प्राइम मिनिस्टर बने जिस दिन, तो उस दिन 26 मई 2014 को जब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, ये सारी डेट्स मैंने गूगल से ली हैं, तो आई थिंक वो ट्रस्टेड होंगी काफी डेट्स। नो, हियर आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन थिंग, कौशिक जी, demonetization, the biggest thing that India has seen after maybe emergency or Independence Day was demonetization. You see the date of demonetization. It was 29th. Exactly. And it was 29th. And the announcement was made, I think, was on had something related with 8, if I remember it correctly, or another thing was announcement was 8. Exactly. But look what he said. He said after 12 o'clock. Right. After 12 o'clock. Exactly. ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा. It means after, as soon as 29th will come into the picture, ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा. तो 2 नंबर ने वहां पर भी काम कर गया अपना. Absolutely. Another thing, when Modi ji went for nomination for Lok Sabha, it was our number 8. Check it out. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो ये जो नंबर थ्योरी है ये कहीं ना कहीं काम कर रही है, लेकिन जिन नंबर्स को लेकर हम हमेशा बोलते हैं कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर आर द ओनली इंपॉर्टेंट नंबर इन योर लाइफ, तो मेरा ये कहना है कि इन 2 नंबर्स के बावजूद एक तीसरा अंक, एक ऐसा जादुई अंक है जो आपकी लाइफ में कुछ भी कराने के लिए सक्षम है. जैसा कि मोदी जी के केस में दोनों दफा नंबर 2 ने अपना काम किया, जबकि कहीं भी उनके बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर में 2 नंबर नहीं है. And the most important part, the most trusted man of Modi is Mr. Amit Shah. अगर आप कबाला न्यूमरोलॉजी के आधार पर जो अभी अक्षर सारणी हमने शेयर की थी स्क्रीन पर, अगर उसके अकॉर्डिंग आप अमित शाह का टोटल करते हैं तो इट कम्स आउट टू 2, जो अगेन उनका एक्टिवेटर नंबर है. और पूरी दुनिया ये जानती है कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में अमित शाह का क्या योगदान. नो डाउट अबाउट इट. फॉरगेट प्राइम मिनिस्टर, Amit Shah was working behind the back when Modi was even CM also. Exactly. और अमित शाह का जो नंबर है 2 नंबर, और फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने 2 नंबर, स्वॉन इन हुए प्राइम मिनिस्टर के पद पर 2 नंबर, डीमोनेटाइजेशन पिक्चर में आया 2 नंबर. आप देख रहे हो किस तरीके से ये 2 नंबर जो कहीं भी नहीं दिख रहा है, जो कहीं बर्थ नंबर और उसमें नहीं दिख रहा है, ये मोदी जी के लिए काम कर रहा है. तो दिस इज द पावर ऑफ एक्टिवेटर नंबर. और सबसे बड़ी बात कि अगर ज्योतिषीय आधार पर भी आप चेक करें तो इट वाज द दशा ऑफ चंद्रमा व्हेन नरेंद्र मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया.
and again the number connected with Chandrama is number 2. Absolutely. So in both the way, दोनों तरीके से, चाहे वो ज्योतिष के आधार पर ले, चाहे न्यूमरोलॉजी के आधार पर ले, एक्टिवेटर नंबर का कोई मुकाबला नहीं है. इट इज द मोस्ट पावरफुल नंबर फॉर एवरीवन. अगर आपको अपना एक्टिवेटर नंबर मिल जाता है तो आप समझिए आपको ग्रोथ का वो पाथ मिल गया, आपको वो चाबी मिल गई जिसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं. यू कैन डू वंडर्स. नो डाउट. नेक्स्ट केस स्टडी हम देखते हैं. नेक्स्ट केस स्टडी इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वन. शाहरुख खान, एग्जैक्टली. शाहरुख खान जी का जो डेट ऑफ बर्थ यहां पर निकल के आ रहा है, यह है 2 नवंबर 1965. राइट. और इसमें जो 2 नंबर निकल के आ रहे हैं, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर, वो है 2 और 7, 2 and 7. एक्टिवेटर नंबर हमने डिसाइड किया कि इनका 4 है, और वो किस आधार पर किया वो चेक करते हैं. जितने भी शाहरुख खान के फैंस हैं जो आज की डेट में इंडियन सिनेमा से ताल्लुक रखते हैं, या जो जानते हैं कि शाहरुख खान नाम का कोई एक्टर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, उन सभी को यह बात पता है कि 2 नाम कहीं ना कहीं कॉमनली हर मूवी में शाहरुख खान के मिले हैं. वो है राहुल और राज. एंड द मोस्ट कॉमन ऑफ देम ऑल्सो इज राहुल, जो सबसे ज्यादा प्रचलन में रहा है शाहरुख खान की मूवीज में. उस नाम का टोटल बिग हिट्स. उसके नाम का टोटल है 4. और राज का टोटल है 2, जो उनके बर्थ नंबर को मैच कर रहा है. तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान की जो लाइफ है वो न्यूमरोलॉजिकली अलाइंड है अपनी न्यूमरो ट्रिनिटी के साथ. आप देखेंगे कि इनफैक्ट उनका जो बंगलो है जिसका नाम मन्नत है, उसके भी नाम का जो नंबर निकल के आता है वो नंबर 2 आता है, जो अगेन उनका बर्थ नंबर है. और अगर इस पूरी केस स्टडी को आप चैल्डियन या पाइथा से समझने की कोशिश करेंगे तो वो कोई का कोई नंबर आपके सामने रख देगी उठा के. तो आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुली हर चीज अलाइंड है शाहरुख खान के चार्ट में. और ये एक्टिवेटर नंबर जो 4 निकल के आया है, ये सिर्फ इस आधार पर निकल के नहीं आया कि राहुल नाम उनका जो 4 पे था वो हर फिल्म हिट हुई. आप अगर थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो उनकी जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, उस टीम का जो कलर है दैट इज ब्लू, blackish blue. I am from Kolkata. IPL is coming. Okay. So somewhere you will see कि Rahu is again there in the dress. Yes. The dress code of Kolkata Knight Riders is somewhere connected to planet Rahu. Activator number. And again, जो अपना ये आईपीएल रहा है, इसमें आई थिंक सबसे ज्यादा बार जो विन किया है अगर किसी टीम ने आईपीएल को, तो आई थिंक दैट इज कोलकाता नाइट राइडर्स. वन ऑफ द बेस्ट टीम अमंग ऑल द टीम्स इन आईपीएल. Yes. दैट इज कोलकाता नाइट राइडर्स. तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा ये जो 4 नंबर है कितना कुछ उनके लिए कर रहा है. और शाहरुख खान को जानने वाले जितने भी लोग हैं, इन्होंने कितनी भी मूवीज में काम किया हो, लेकिन जो शाहरुख खान फेमस हुए वो एक मूवी से फेमस हुए जिसका नाम था डर, जिसमें उनका वो एक जो डायलॉग था किरण, वो फेमस हुआ. तो द डेट ऑन विच डर वाज रिलीज्ड, द टोटल ऑफ दैट डेट वाज 4. Absolutely. So आप देख रहे हैं कि नंबर 4 किस तरीके से उनकी लाइफ में वो मिरेकल क्रिएट कर रहा है. और
अगर आप सिंपल एक न्यूमरोलॉजी पैटर्न को फॉलो करेंगे, वो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर वाला, तो आप उस नंबर को नहीं कहीं पर भी देख पाएंगे। जो नंबर 4 हमने यहां पर देखा कि इस व्यक्ति के लिए कितना पावरफुली काम कर रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी के केस में नंबर 2 काम कर रहा था, ठीक उसी तरीके से शाहरुख खान के केस में नंबर 4 काम कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आप अगर सलमान खान का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो सलमान खान की जो टोटल निकल के आता है वो 6 आता है। जो डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल निकल के आता है दैट इज 6। और सलमान खान के जितने भी फैंस हैं उनको ये पता होगा कि सलमान खान का जो प्रेम नाम है वो बहुत फेमस रहा है मूवीज के अंदर। प्रेम, आप कबाला से अभी के अभी टोटल करिए, प्रेम कम्स आउट टू 6। तो 6 नंबर के साथ देखा वो किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना दिया कबाला ने, जो इब्रू कोड्स हैं। अदरवाइज आप चेल्डियन में जाओ, आप पाइथा में जाओ, एक कुछ बोलेगा एक कुछ बोलेगा। ये जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं उन सबको अलाइन करके बता देगा ये क्यों अलाइन है, किस लिए अलाइन है, और किस तरीके से इनका डेस्टिनी पैटर्न काम कर रहा है इन नंबर्स पर। सर, आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क। जी वरुण जी, आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क। सर, you have said numero trinity: birth number, destiny number, activator number, and maximum focus of yours has been on the activator number. Absolutely Varun ji. Sir, how did you generate this activator number? Is it your own research, or is it there in some Kabbalah books, or no learned it somewhere? Varun ji, it is nowhere इन द बुक्स। आपको कोई मार्केट में ऐसी बुक नहीं मिलेगी जो एक्टिवेटर नंबर को आपको निकाल पाए। बट क्योंकि मैंने इस नंबर को बहुत पावरफुल पाया है, तो अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर मैंने कुछ मेथड्स को डेवलप किया है, जिनमें से कुछ जो शॉर्ट मेथड हैं, जो शॉर्टकट मेथड है, बिकॉज लॉन्ग मेथड के लिए हमारे पास थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है। लेकिन कुछ जो अपने बहुत बेसिक मेथड है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिवेटर नंबर को निकालने की एक जो बहुत कॉमन तरीका है वो क्या है। ओके वरुण जी, आज की डेट में कोई भी व्यक्ति अगर किसी ज्योतिषी के पास आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो इस बात को लेके चिंतित है कि उसका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। एब्सोल्युटली। उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहने वाली है। आप here I will interject. Basically, I have seen, because I am member of many of the Facebook groups and everywhere, I have seen there is 3 pertinent questions that everyone has, and as people say, no one gets to know the answers. वो गोल गोल घूमते रह जाओगे वाला स्कीम है। सबके पास जाओ, सब कोई ना कोई चीज बताता रहेगा, 12 ग्रहों में घूमते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वरुण जी। लेकिन वरुण जी, जो मेथोडोलॉजी हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं सभी के साथ, ये इतना बारीकी से काम करती है और इसके पीछे एक सर्टेन लॉजिक है। ये इलॉजिकल मेथोडोलॉजी नहीं है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। वरुण जी, कुंडली के अंदर अगर फाइनेंस की बात करें तो सबसे प्रमुख जो हमने घर माना है, जो धन भाव माना है, वो है हाउस नंबर 2। सेकंड हाउस को हम प्राइम हाउस मानते हैं अपने धन का, क्योंकि आप कुछ भी कमा रहे हैं, कुछ भी आप गेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि वो गेन आपका एक्युमुलेट हो जाए। और देखिए कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जहां हम सिग्निफिकेटर की बात करते हैं, बृहस्पति की, जो दूसरे भाव को सिग्निफाई करता है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में राशि जो पड़ती है वो शुक्र की पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष में शुक्र और बृहस्पति को दूसरे भाव से जोड़कर देखा गया है। लेकिन उसके बावजूद इस घर पर सबसे ज्यादा जो हक मिला है वो चंद्रमा को मिला है, बिकॉज इट इज द प्लैनेट मून जो वहां पर एक्सॉल्टेशन में रहता है। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी को अगर आधार लिया जाए तो चंद्रमा का रोल हमारे फाइनेंस से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जुड़ जाता है, क्योंकि दूसरे भाव में एक्सल्टेशन में चंद्रमा है। हमने एक पैटर्न बनाया और उस पैटर्न के आधार पर हमने ये देखा कि जब जब किसी भी व्यक्ति को कोई धन लाभ हुआ,
सपोज करिए कि आज 10:20 पर आपको कोई अमाउंट, कोई पर्टिकुलर, कोई बहुत अच्छा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आया, तो ऑल ऑफ अ सडन आपके पास मैसेज आएगा। तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जिस टाइम वो मैसेज आया, आप एक प्रश्न चार्ट बना सकते हैं, एक प्रश्न चार्ट बना सकते हैं, और आप ग्रहों की स्थिति बहुत इजीली देख सकते हैं। नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर देयर, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें कोई इतना लंबी चौड़ी अपनी एक्सरसाइज नहीं है कि किसी को कुछ सोचना पड़े। बहुत सिंपली आप एक चार्ट को बना लेंगे उस टाइम। वरुण जी, आप देखेंगे कि अगर आपने ऐसी 100 एंट्रीज बनाई हैं, तो इन मोर देन 70-80% केसेस यू विल फाइंड अ सिंगल प्लैनेट गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जो चंद्रमा की स्क्रिप्ट आप बनाएंगे, उस चंद्रमा की स्क्रिप्ट में आप एक प्लैनेट को हर दफा पाएंगे काम करता हुआ। और चंद्रमा की स्क्रिप्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपने लेना है, वो है चंद्रमा का सब लॉर्ड, यानी कि चंद्रमा का उपनक्षत्र। क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि किसी भी ग्रह का अगर फल जानना है, तो आप उसके सबसे पहले नक्षत्र स्वामी को देखो कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किन भावों को दर्शा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो इस पूरे रिजल्ट को वेरीफाई करने का जो काम कर रहा है, जो वेरीफायर के तौर पर काम कर रहा है, या उस रिजल्ट को हरी झंडी दे रहा है आगे, वो सब लॉर्ड है। तो बेसिकली सब लॉर्ड इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर एवरी इवेंट इन केपी एस्ट्रोलॉजी। तो आप पाएंगे वरुण जी कि अगर 100 दफा किसी व्यक्ति को धन लाभ हुआ, तो इन मोर देन 80% केसेस, मोर देन 75 एंड इवन कुछ केसेस में मोर देन 90% केसेस में यू विल सी कि चंद्रमा का सबलॉर्ड कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट रिपीट हो रहा है, एंड दैट प्लैनेट कुड बी योर एक्टिवेटर नंबर प्लैनेट। और ये वो ग्रह है वरुण जी, जिसको अगर आप किसी भी तरीके से अपनी कुंडली में पावर करते हैं, चाहे जेमस्टोन के आधार पर, कलर के आधार पर, या उस प्लेनेट से जुड़े हुए किसी कार्य के आधार पर, तो डेफिनेटली ये प्लेनेट आपको पैसा देगा। क्योंकि अगर किसी प्लेनेट का धन मिलने के अवसर पर बार बार रिपीटेशन आ रहा है, इट मींस कि वो प्लेनेट कहीं ना कहीं आपको एक क्लू दे रहा है कि आपके धन से मेरा जुड़ाव है कहीं ना कहीं। नहीं तो 9 ग्रह हैं हमारे पास, उस एक प्लेनेट की बजाय वो 8 ग्रह भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन वही ग्रह क्यों बार बार रिपीट हो रहा है? और हमने बहुत हद तक देखा कि एक्टिवेटर प्लेनेट, जो एक्टिवेटर नंबर से जुड़ा हुआ जो प्लेनेट है, वो उस चंद्रमा के सब लॉर्ड में कई दफा रहता है, या जो भी वो प्लेनेट रहेगा उसका कहीं ना कहीं आपकी न्यूमरो ट्रिनिटी से लिंक होगा ही होगा। गॉट माय पॉइंट? Brilliant. Sir, here I would like to ask you one thing. ये जो planets and number है, are they same according to the Vedic, or there is something different in Kabbalah? Like in Vedic, we have to consider one as sun. Look, वरुण जी, प्लैनेट्स को चाहे कोई भी ट्रेडिशन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे इजिप्टियन हो, चाहे इंडियन हो, प्लैनेट की एग्जिस्टेंस को सभी ने माना है। हर इंसान जो इस धरती पर है वो कहीं ना कहीं मानता है कि प्लैनेट्स आर देयर। और क्योंकि आप इस भूमंडल में रह रहे हैं, तो प्लैनेट्स का कहीं ना कहीं इफेक्ट आप पर पड़ता है, चाहे वो एनवायरमेंटल इफेक्ट हो, चाहे सबकॉन्शियस इफेक्ट हो, या वो इफेक्ट हो जिसको हम ज्योतिष के आधार पर जिसकी गणना करते हैं। तो उस केस में जो प्लैनेटरी क्वालिटीज को जितना बारीकी से वैदिक ज्योतिष ने रिप्रेजेंट किया है, उतना किसी ने नहीं किया। हालांकि जो इजिप्ट के लोग हैं, उन्होंने भी प्लैनेट्स के साथ काफी कुछ काम किया, उन्होंने भी प्लैनेट्स को नाम दिए। फॉर एग्जांपल, उन्होंने सैटर्न को अमुनरा कहा है। तो काफी ऐसे नाम हैं जिनकी क्वालिटीज उन्होंने भी निर्धारित की है। लेकिन जितना फाइन ट्यून हम लोगों ने प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को किया है, उतना किसी दूसरे ज्योतिष या किसी ऑकल्ट फील्ड ने नहीं किया। तो अगर उस आधार पर हम नंबर्स को समझें, तो हम नंबर्स को प्लैनेटरी ही तरीके से डिस्क्राइब करें तो ज्यादा बेटर है। मैं बहुत शॉर्ट में हर
नंबर की क्वालिटी को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। That will be great. नंबर 1, कनेक्टेड टू प्लेनेट सन। सन रिप्रेजेंट करता है आपकी कोर को, आपकी आत्मा को। तो अगर नंबर 1 वाले व्यक्ति को आप कभी मिलेंगे तो किसी भी बात का, अब हम कोई बात कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो इस कन्वर्सेशन का कोई ना कोई क्रक्स होगा, कोई ना कोई कोर होगा। तो नंबर 1 वाला बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन ना करके सीधे मुद्दे पे आएगा। वो कहेगा मुद्दे की बात करो, कोर की बात करो, लेट्स गो टू द कोर। तो नंबर 1 वाला कभी वेस्ट नहीं करेगा टाइम को। वो सीधे कहेगा यार ये फालतू चीजों में मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे को मुद्दे की बात करो। नंबर 2, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके अवचेतन मन को। और हमारे माइंड में जितनी भी डिटेलिंग चलती है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड की चलती है। तो जितने भी आपको डे ड्रीमर्स मिलेंगे वो नंबर 2 वाले मिलेंगे। हर टाइम सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के एक पैटर्न में कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, जो चंद्रमा जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि 2 नंबर वाला व्यक्ति अगर कोई सामान को खरीदने जा रहा है तो वो इतनी सोच में पड़ जाएगा कि अगर उसको बुक खरीदनी है, अरे बुक का कवर कैसा है, इसका पेज कैसा है, इसके लेटर्स कैसे हैं, तो वो डिटेलिंग में लग जाएगा। सेम वे नंबर 3, तो नंबर 3 का काम क्या है? नंबर 3 है जुपिटर का नंबर, जो हमें इंसाइट्स देता है, हमें आइडियाज देता है। तो आइडियाज और इंसाइट्स होते हैं नंबर 3 के पास। आपको आइडियाज नहीं आ रहे, आप नंबर 3 वाले व्यक्ति के पास जाइए, आप कहिए कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर काम करना है, कोई आइडिया दो, वो फटाक से आपको आइडिया देगा। तो गेट एन आइडिया वाला जो काम है ये नंबर 3 का है। और आप कमाल की बात देखिए कि जो हमारा जो टेलीफोनिक जो सर्विसेज इंडिया में जो चालू है, उसमें जो आइडिया जो है वो येलो कलर पे है, जो बृहस्पति से कनेक्टेड है, जो इसकी क्वालिटी को दिखा रहा है, नंबर 3। एंड एवरीवन नोज के आइडिया अच्छा चल रहा है इंडिया में, आइडिया इज डूइंग गुड। नंबर 4, राहु, अटेंशन एंड रिपीटेटिव थॉट पैटर्न। 4 नंबर वाले व्यक्ति से आप कभी भी मिलेंगे, हम एस्ट्रोलॉजर्स लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो 4 नंबर वाले व्यक्ति को कभी टेस्ट करना है कि ये पर्टिकुलर 4 नंबर है, आप उसको ये बोलो कि हिमालय की चोटी पर एक बाबा बैठे हैं समाधि लगाए, और वो आपका समाधान कर सकते हैं, तो 4 नंबर वाला 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेगा और वहां पहुंच जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि 4 नंबर वाले की जो क्वालिटी है, जो 4 नंबर वाले की क्वालिटी है, दैट इज रिपीटेटिव थॉट पैटर्न। वो थॉट उसके दिमाग में चलता ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस वो उस कार्य को ना कर दे। तो 4 नंबर वाले को बहुत सोच समझ के कुछ कहो, क्योंकि अगर कह दिया तो जब तक वो उस काम को नहीं कर लेगा उसको चैन नहीं आएगा, क्योंकि वो राहु है, रिपीटेटिव थॉट पैटर्न। सेम वे नंबर 5, एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बुध, जैसा देश वैसा भेष। क्विक लर्नर्स होते हैं, बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में चेंजेस बहुत रहते हैं, क्योंकि बुध है ना, कहीं एक जगह टिक नहीं सकता। तो ये यही डिसाइड नहीं कर पाते कि इन्होंने जीवन में ऐसा कौन सा प्रोफेशन चूज करना है जो इनको सूट करेगा। तो बुध वालों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। और दूसरा, क्योंकि बुध का जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि बुध टिक नहीं सकता, क्योंकि बुध बच्चा है। आप बच्चे को कभी कहोगे कि बेटा टिक के बैठ, तो वो टिक के नहीं बैठेगा, वो घूमते रह जाएगा। तो वो घूमते रहेगा। तो जितने भी आपको वंडरर्स मिलेंगे, वंडरर्स लोग जो घूम रहे हैं, कोई कभी आज वो हिमालय पे है, कल वो कैलाश पे चला गया, कल वो कन्याकुमारी है, वो कहीं ना कहीं 5 नंबर से कनेक्टेड। नंबर 6 रिलेटेड टू प्लैनेट शुक्र। और शुक्र आपके जीवन में डिस्क्रीटरी पावर को देता है, फर्क करने की क्षमता शुक्र की है। अच्छा है कि बुरा है, ये जो क्वालिटी है ये शुक्र की है, नंबर 6 की क्वालिटी है।
और इनके अंदर एप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि शुक्र का व्यक्ति है तो ऑब्वियसली वो ब्यूटी को अप्रिशिएट करेगा ही करेगा। और इनकी अगर पहचान करनी है तो आप किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाइए और म्यूजिक कॉन्सर्ट में कोई व्यक्ति गाना गा रहा है तो आप शुक्र वाले व्यक्ति को पाएंगे कि दूसरा आदमी कुछ कहे ना कहे, ये बैठे बैठे अपने आप ही वाह 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 इस तरीके की चीजें कर रहे होंगे। उनको ये भी नहीं पता होगा कहाँ वाह वाह कहनी है, लेकिन वो एप्रिसिएशन इतना ज्यादा है वो हर बात पे वाह कहेंगे, वाह वाह वाह। तो वो प्लेनेट शुक्र है। नंबर 7 केतु। केतु रिप्रेजेंट करता है इंटेंशन को। जिस तरीके से राहु अटेंशन है, केतु इंटेंशन है। राहु इज ध्यान अटेंशन, केतु इज धारणा। तो हम धारण जो कर लेते हैं, तो 7 नंबर वाले को आप पाएंगे कि इन्होंने जो दिमाग में अपने एक पिक्चर बना ली वो बना ली, ये उसको डिलीट नहीं करेंगे। इन्होंने सोच लिया कि पृथ्वी गोल नहीं चपटी है, तो ये चपटी ही मान के मरेंगे। आप चेंज नहीं कर सकते। उनकी धारणा धारण कर लिया उन्होंने उस चीज। तो ये नंबर 7 का है केतु का। लेकिन क्या है कि 7 नंबर अगर कुंडली के अंदर कहीं भी है, आपके बर्थ नंबर में कहीं भी 7 है, क्योंकि केतु से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो ओकल्ट फील्ड में इन्होंने आना ही आना है। दे आर डेस्टाइन्ड टू बी इन ओकल्ट और एनी स्पिरिचुअल फील्ड। तो कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव रहेगा ही रहेगा। आप डिफरेंट अगर पर्सनालिटीज को देखेंगे फिल्म इंडस्ट्रीज की, तो अगर कहीं भी किसी भी पर्सनालिटी में आप देखेंगे कि नंबर 7 का अगर रोल है, तो आप पाएंगे वो फिल्म इंडस्ट्री में होते हुए भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल या ओकल्ट रिलेटेड चीजों में है। नंबर 8 सैटर्न। फोकस, ध्यान, धारणा, एकाग्रता, फोकस रिप्रेजेंटेड बाय सैटर्न। हार्डवर्क का है, ऑनेस्ट होते हैं लोग, बट प्रैक्टिकल और थोड़े से लालची भी होते हैं, ग्रीड होती है इनमें। और इनका सबसे नेगेटिव पार्ट क्या है कि अगर आज आपने किसी सैटर्न वाले व्यक्ति को छेड़ दिया, वो 10 साल बाद भी याद रखेगा कि वरुण ने मेरे को छेड़ा था। वो भूलेगा नहीं। वो पिक्चर यहां प्रिंट कर लेते हैं और यहां प्रिंट करने के बाद वो किसी भी हद तक जाएंगे वरुण से बदला लेने के लिए। ये नंबर 8 है, जो यहां ब्लूप्रिंट बिठा लिया नफरत में किसी के लिए भी, तो वो उसके लिए काम करेंगे। ये नंबर 8 की क्वालिटी है। नंबर 9 मार्स। मार्स को बहुत हद तक ज्योतिष में आक्रामक प्लेनेट माना गया है, बट ऐसा नहीं है। मार्स की जो सबसे पहली टेंडेंसी है वो है गिविंग। क्या? इसलिए आप गिविंग ओके, गिविंग, ओके। इसलिए आप 9 नंबर वाले व्यक्ति को पाएंगे, इनके अंदर देने की एक भावना होती है। दे कैन गिव। इंपल्सिवनेस थोड़ी सी होती है। रिएक्शन रेट मार्स वाले व्यक्ति का थोड़ा सा फास्ट होता है। मार्स वाला व्यक्ति है, उसके पास किसी दोस्त ने आके कहा अरे उसकी लड़ाई हो गई, वो 2 मिनट सुनेगा भी नहीं किससे लड़ाई होगी, वो कहेगा चल। बिकॉज मार्स का काम है टू रिएक्ट। तो एक्शन और रिएक्शन ये मार्स का डोमेन है। तो एक्ट करने में लोग बिलीव करते हैं 9 नंबर वाले, गिविंग टेंडेंसी होती है और डूअर्स होते हैं। ये लोग काम करने में यकीन रखते हैं। तो ये एक मेरा बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन नंबर्स को लेकर था। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा आप इन नंबर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट ये बहुत छोटे से पिन पॉइंट्स थे जो नंबर्स को लेकर मैंने बनाए हैं। बट सर, आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन टू आस्क। जी। शायद इसके लिए हम लोग अलग वीडियो बनाना पड़े बाद में। जी। आई हैव ऑलवेज फेल्ट as be it astrology, numerology, whatever, they should be used to correct oneself. जी, absolutely. Predictive part बाद में आता है, फलित बाद में। पहले गणित और उससे हमको जो मिलता है, रस जो मिलता है, तो करेक्ट ourself। तो नंबर्स में हम देखें सर, आपने जितना भी बताया
They are all the good जी, qualities. But जी, every number, I presume, जी, must be associated with some of the negative qualities also. absolutely, absolutely, And if a person absolutely, knows, okay, this is the number I am in, this is my जी, negative qualities, because until unless I know, how can I change? डेफिनेटली। तो उसके वरुण जी लिए शायद हम बहुत लोगों को एक अच्छा। वीडियो बनाना चाहिए। नहीं, इसके बारे में वरुण जी मैं एक बहुत शॉर्ट में आपको एक चीज कहना चाहूंगा। हमने यहाँ पर बात की बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को लेकर, और एक्टिवेटर नंबर की पावर हम लोगों ने देख लिया कि कितना पावरफुल नंबर ये है। लेकिन एक नंबर जिसको बहुत से लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी पावर को नहीं समझ पाते, वो है हमारे नाम का नंबर, हमारा नेम नंबर। और कहीं ना कहीं वरुण जी एक्टिवेटर नंबर तो काम करता ही करता है, लेकिन हमारी लाइफ में नाम के नंबर का बहुत ज्यादा महत्व है। कारण कि ये आपका नाम ही है जो दिन में पता नहीं कितनी बार जिसकी ध्वनि गूंजती है। आप भी किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताकर नहीं करते, अपने नाम को बताकर करते हैं। और कमाल की बात देखिए कि लोगों ने नाम की पावर को बहुत कम समझा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत छोटे एक नोट पर ये कहूंगा कि आपका एग्जाम्पल लेते हैं, आपका नाम है वरुण देव चौधरी, जिसका अकॉर्डिंग टू कबाला टोटल आता है नंबर 3। तो कहीं ना कहीं आपका नंबर 3 ये बता रहा है, जो आपके नाम का नंबर है वो ये बता रहा है कि यू आर कनेक्टेड विद प्लैनेट जुपिटर। अदरवाइज योर बर्थ नंबर इज 9, which is Mars, and the second number is 5, which is Mercury. And just look behind your back, there are so many books. Yeah. That is absolute Jupiter. This is because you are having the name number 3. So you have those qualities also which number 3 is having: insights, ideas. These are the good qualities you are having. But what is the bad part? The bad part is you get bored very easily. आप किसी भी चीज को बहुत लंबे समय तक एंजॉय नहीं कर पाते। आप थिएटर में भी जाएंगे तो 1 घंटे आपका एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन आफ्टर 1 घंटे आप ऐसे बोर्ड होके आ जाएंगे, आप कहेंगे यार मैं आया क्यों ये मूवी देखने। So this is the quality which your name number is imbibing in you. तो नाम का जो नंबर है वो आपको क्या क्वालिटीज दे रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर किसी व्यक्ति के सबकॉन्शियस पैटर्न को बदलना है, उसकी डेस्टिनी पैटर्न को बदलना है, तो नाम में बदलाव बहुत जरूरी है। और मेरा अपना ये मानना है कि लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर, इसके साथ जब आपके नाम का संबंध बन जाता है, when your name number is getting connected to your destiny number, तो आपके सबकॉन्शियस को अपने आप वो पाथ मिल जाता है लाइफ का, जो आपकी डेस्टिनी ने आपके लिए तैयार रखा हुआ है कि आपने यही कार्य करना है। लेकिन क्योंकि वो नाम नंबर उसके विपरीत कार्य कर रहा है, तो वो चीज आप नहीं कर पा रहे। For example, in your case, your destiny number is 5. So destiny number 5 is related to Mercury. It is all about communication and marketing. But instead of doing networking and marketing, you are reading books. You are acting like Jupiter. So when you will be getting connected to that number 5, you will be more into that stuff. अब वो 5 नंबर वाली क्वालिटीज से जुड़ जाएंगे। No, it is something like this. During the daytime I am number 5, and during night I am number 3 actually. Because astrology is not my profession, and neither I intend to make it my profession. Okay. It is only because of Sunil sir that I am into this field.
I am helping sir out. Neither No, I earn out of it, neither I intend to earn out of it. बट वरुण जी क्या है ना कि जो आपका नाम नंबर है वो आपको इस चीज से कभी हटने नहीं देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो हटने नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आपके नाम के नंबर में बदलाव आएगा, वो सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे बन जाएंगे लाइफ के कि अपने आप ही आपको नंबर 5 की एनर्जी पूरी तरीके से खींच के ले जाएगी, और जो आप डे टाइम में रहते हैं वही आप नाइट टाइम में भी रहेंगे। Great. ऐसा मेरा मानना है। I have a question. Most of the people will ask the same thing. जी कल मैं मूवी देखने गया, राइट? जी। और रेड बेसिकली बच्चे को लेके गया था देखने के लिए, वाइफ बच्चे को। तो what struck me was the name of Ajay Devgan. Okay. Previously it was DEVGAN. आज जब न्यूमरोलॉजी डिस्कस कर रहा हूं आपसे न्यूमरोलॉजी, तब मुझे ध्यान में आया अभी। Now it became DEVGN. तो does it make sense कि बिना हम लोग ध्वनि चेंज करके, स्वर चेंज करके, just changing the alphabet, does it work actually? इस चीज को मैं नहीं मानता वरुण जी। उसका कारण है, एक एक्टर के लिए उसके नाम से भी ज्यादा वो नाम मैटर करता है जो उसकी मूवी में है। बिकॉज अगर नाम की आइडेंटिटी की बात करें, एक नाम की पहचान की बात करें, तो एक एक्टर की कोई अपने नाम की पूरी तरीके से एक पहचान नहीं होती। उसकी नेम आइडेंटिटी मूवी के साथ बदलती रहती है। जैसे शाहरुख खान को नॉर्मली लोग राज और राहुल के रूप में देखते हैं, बेसिकली ही शाहरुख खान, बट हमारा जो सबकॉन्शियस है उनको राहुल और राज के रूप में देखता है। तो इट इज बेसिकली दैट नंबर जो मूवी में उनको नंबर मिला है वो उनके लिए वर्क करता है, ऐसा मेरा मानना है। एंड फॉर कॉमन पीपल, जैसे देयर आर पीपल हु राइट्स Sunil or Ravish, sometimes you will see double A. नाम चेंज नहीं किया, नाम सेम रहा, प्रोनाउंसिएशन सेम रहा, सिर्फ एक आध अल्फाबेट इधर उधर घुमा देता है। तो does it work like that in Kabbalah system? इसके पीछे मेरा एक मानना है वरुण जी। हमारे हिंदू संस्कृति में जो ब्रह्मनाद कहा गया है वो ओम को कहा गया है। जो ओम शब्द है वो ब्रह्मनाद है, और ओम शब्द में अगर आप AUMM कर देते हैं तो आप क्या उसको कोई और वर्ड बोलेंगे? स्टिल अभी भी आप उसको ओम ही बोलेंगे। अगर वो ए की जगह यू को हटा के हम ए कर दें, तब वो ओम नहीं रहा, तब वो आम हो गया। तो मेरा मानना, अपना मानना यह है कि जब पूरी सृष्टि इस बात को मानती है कि ओम की ध्वनि एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन क्रिएट करती है, तो ध्वनि है जो काम कर रही है, वो ध्वनि है। तो ध्वनि नहीं बदली, जब ध्वनि नहीं बदली तो इंपैक्ट कैसे बदलेगा? मेरा एक बहुत साधारण लॉजिक है इसके पीछे, और मेरे को इसका आंसर अभी तक नहीं मिला है कि ध्वनि नहीं बदलने से भी इंपैक्ट बदल सकता है। तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज को ज्यादा कारगर मानता हूं कि जब ध्वनि चेंज होगी तब ही अफेक्ट में चेंज आएगा। मेरा अपना पर्सनल बिलीफ ये कहता है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट सर। यू आर गिविंग एन एग्जांपल जस्ट ये स्टार्ट होने के पहले जी, about activator number and traffic. If you could give that example once more. Yes. Because that is what brings in the crux of the activator number. Actually, it is a formula, वरुण जी। बेसिकली क्या होता है कि एक्टिवेटर नंबर ऐसा नहीं है कि ये हमेशा आपकी लाइफ में छुपा रहता है, कहीं ना कहीं ये आपके आसपास होता है। आप अपने बैड सर्कमस्टांसेस में देखें कि आप कहीं फंसे हुए हो और एकदम से आपको कोई उस सिचुएशन से निकाल के ले गया, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति एक्टिवेटर नंबर से कनेक्टेड है आपके, चाहे अपने बर्थ नंबर में हो
जो उसके बर्थ नंबर्स हैं, चाहे उसके नाम का जो नंबर है वो आपका एक्टिवेटर निकल के आ जाए। तो ये भी एक फार्मूला है ताकि आप ये जांच पाए कि कोई व्यक्ति जो आपके लिए एकदम से बहुत बढ़िया प्रूव हुआ वो आपके एक्टिवेटर नंबर से कनेक्टेड हो। और क्योंकि हमने कहा है कि इस नंबर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इंसान की सिचुएशन कैसी है, ये कैसी भी सर्कमस्टांसेस में आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। तो फॉर लेट से आप ट्रैफिक में हैं और आपको ये पता है कि आपका एक्टिवेटर नंबर क्या है, तो आप सिंपली एक काम कीजिए, आप उस गाड़ी को ढूंढ लीजिए जो आपके एक्टिवेटर नंबर पर है और उस गाड़ी के पीछे आप इसको लगा लीजिए। विद इन 5 मिनट्स यू विल बी आउट ऑफ ट्रैफिक। कैसी भी सिचुएशन हो, ट्रैफिक कैसा भी हो, वही गाड़ी आपको निकाल के ले जाएगी। प्रूवन है, टेस्टेड है, काम करता है। और सबसे बड़ी बात, एक्टिवेटर को निकालने का बहुत अच्छा फंडा भी उन लोगों के लिए स्पेशली जो एस्ट्रोलॉजिकल चीजों को बहुत ज्यादा नहीं जानते। तो एक्टिवेटर नंबर जो है ये एक योग कारक, ये एक ऐसा मैजिकल छड़ी है कि एक बार ये आपके हाथ में आ गई तो इसके साथ आप कितनी चीजें कर सकते हो ये खुद आपको भी नहीं पता। How do people can consult you if they want to know your activator number, if they want to meet you, or if they want to take your talk to you? How can they do so? वरुण जी, उसके लिए मेरा नंबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो आपने बताए थे तो वो मैं ऑलरेडी दे दूंगा उसमें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हम लोग का रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ YouTube पर भी मेरा अपना एक चैनल है ज्योतिष वेदा के नाम से, जिसके अंदर मेरी जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो वहां पर है। और यही मीडियम है फिलहाल जिसके थ्रू मेरे से कांटेक्ट किया जा सकता है। बाकी मेरी वेबसाइट है jyotishveda.com, उसके अंदर भी मेरा डिस्क्रिप्शन है मेरी सर्विसेज का है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मेरे को उन पर्टिकुलर नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकता है। और एक नंबर मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। राइट, वो मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में जी। तो सर आज के लिए सर क्लोज करने का इजाजत चाहूंगा सर आपसे, क्योंकि आप हमारा गुरु रहे हैं। आप सिखाए हैं हम लोगों को, सप्तर्षि चैनल को आप सिखाए हैं, उनका व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को बताएं, तो यू बिकम अ गुरु फॉर अस। So may I take your permission to close the session, sir? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। आपको नमस्कार सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू सप्तर्षि's channel. Thank you Varun ji, thank you so much. And it is from Mr. Sunil John sir. I send his regards to you sir for giving time. जी. And we hope to get you back soon with another episode on Kabbalah astrology and maybe something more on numerology. Sure. Right, sir. Sure, thank you, sir. It's a pleasure. Same here, Varun. Thank you, sir. Subscriber button is there. Please subscribe and wait for the updates for the new videos coming pretty soon. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.
you.